নমস্কাৰ এই মতো লৈছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 1 জুলাইৰ পৰা দেশত কেইবাটাও নিয়ম সলনি হ'ব কিয়নো তিনিখনকৈ বিশেষ আইন অনা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু এতিয়াৰ পৰা অপৰাধী বা দুখী তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব অভিযুক্ত তৎক্ষণাত লাভ কৰিব ন্যায় আৰু কেইবাটাও নিয়ম সলনি হ'ব আৰু তিনিখনকৈ আইনত কি আছে কি প্ৰশাসনিক দিশত হাল সলনি হ'ব আমি সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত A to Z লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ 1 জুলাইৰ পৰা দেশত সলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম তিনিখন আইনে এতিয়া সলনি কৰিব নিয়ম তিনিখন অপৰাধমূলক আইন বলবৎ হ'ব দেশত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক প্ৰতিৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য সংহিতা আৰু এই তিনি নতুন আইনে সলনি কৰিব দেশৰ প্ৰশাসনিক দিশ আইপিসিক এতিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বুলি কোৱা হ'ব আইপিসিত 511টা সেকশন থকাৰ বিপৰীতে বিএনএছপিত থাকিব তাতকৈ কম আৰু তাৰ পিছত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত 20টা নতুন অপৰাধ সংযোজনৰ বিপৰীতে 19টা বিধান বিলুপ্ত কৰা হৈছে 41টা অপৰাধত বৃদ্ধি কৰা হৈছে কাৰাদণ্ড বা কাৰাবাসৰ সময় আৰু লগতে 23টা অপৰাধত বাধ্যতামূলক ন্যূনতম শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সিআৰপিসি এতিয়াৰ পৰা কোৱা হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিক প্ৰতিৰক্ষা সংহিতা সিআৰপিসিত 484টা ধাৰাৰ বিপৰীতে থাকিব বিএনপিএছত থাকিব 531টা ধাৰা ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইনৰ 167টা ধাৰাৰ বিপৰীতে এতিয়া থাকিব কমকৈ থাকিব আৰু তাৰ পিছত 24টা ধাৰাৰ পৰিৱৰ্তনে নতুন আইন অনুসৰি প্ৰবঞ্চকক 420 ঠাইত ক'ব লাগিব 302 দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিলে দিয়া হ'ব যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰক্ষীলৈ বৃহৎ সাল সলনি কৰা হৈছে কোনো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে জনাব লাগিব পৰিয়ালৰ লোকক আৰু 180 দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব লাগিব চাৰ্জশ্বিট সন্ত্ৰাসবাদ শেষ কৰিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ শীৰ্ষক নতুন ধাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ব্ৰিটিছৰ ৰাজদ্ৰোহ শব্দৰ ঠাইত এবাৰ নতুন শব্দ দেশদ্ৰোহ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে নতুন অপৰাধমূলক আইনৰ জৰিয়তে দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হ'ব নতুন আইনৰ দ্বাৰা দেশত ন্যায় তৎকালীনভাৱে দিয়া হ'ব 3 বছৰৰ পাছতে নতুন আইনৰ অধীনত অভিযুক্ত লাভ কৰিব ন্যায় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সদনৰ শীতকালীন অধিৱেশনত নতুন তিনিখন আইনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল 1 জুলাইৰ পৰা দেশত এনেদৰে কেইবাটাও নিয়ম সলনি হ'ব তিনিখন অপৰাধমূলক আইন বলবৎ হ'ব দেশত আৰু এই তিনিখন আইন হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক প্ৰতিৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য সংহিতা আৰু এই তিনি নতুন আইনে সলনি কৰিব এতিয়া দেশৰ প্ৰশাসনিক দিশ আইপিসিক এতিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বুলি কোৱা হ'ব আইপিসিত 511টা সেকশন থকাৰ বিপৰীতে এতিয়া থাকিব 358টা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত 20টা নতুন অপৰাধ সংযোজনৰ বিপৰীতে কেইবাটাও বিলুপ্ত কৰা হৈছে 41টা অপৰাধত নতুন কাৰাদণ্ড বা কাৰাবাসৰ সময়সীমা ধাৰ্য কৰা হৈছে লগতে 23টা অপৰাধত বাধ্যতামূলক ন্যূনতম শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সিআৰপিসিক এতিয়াৰ পৰা কোৱা হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিক প্ৰতিৰক্ষা সংহিতা আৰু সিআৰপিসিত 484টা ধাৰা থকাৰ বিপৰীতে এতিয়া কেইবাটাও হ্ৰাস কৰা হ'ব 9টা নতুন ধাৰাৰ সংযোজনেৰে কেইবাটাও হ্ৰাস কৰা হৈছে বা বিলুপ্ত কৰা হৈছে ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইনক এতিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় সাক্ষ্য সংহিতা বুলি কোৱা হ'ব আৰু এনেদৰে কেইবাটাও নিয়ম হাল সলনি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই নতুন আইনে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক দিশত হাল সলনি ঘটাইছে তিনিখন অপৰাধমূলক আইন বলবৎ হ'ব যিহেতু দেশত আৰু এই তিনিখন আইনে এতিয়া কেইবাটাও হাল সলনি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1 জুলাইৰ পৰা দেশত এনেদৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বা কাৰ্যকৰী হ'ব তিনিখনকৈ নতুন আইন অপৰাধ কৰিলে এতিয়া অন্তিম শাস্তি বিধা হ'ব কিয়নো দেৱ শিশুৰ লগত যদি ধৰ্ষণৰ দৰে কাণ্ড সংঘটিত কৰে তেনেহ'লে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু যুৱতীৰ সৈতে যদি ধৰ্ষণ কাণ্ড কৰে তেনেহ'লে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু সমান্তৰালকৈ হিট এণ্ড ৰানৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈছিল কিন্তু হিট এণ্ড ৰানৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছতে হিট এণ্ড ৰানৰ যিটো ধাৰা আছিল সেই গোচৰ সেই ধাৰাটো এতিয়া উঠাই লোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সকাহ প্ৰদান কৰা হৈছে দেশৰ চালকসকলক এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কি কৈছিলে আমি সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম 313 बदलाव है मान्यवर और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा मान्यवर इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी है इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है
एक और हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट मिलने लगे। ये इसलिए किया गया कि ये कानून हम लेकर आने वाले थे। हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। एक और हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट मिलने लगे। ये इसलिए किया गया कि ये कानून हम लेकर आने वाले थे। हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह
नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर